Hello dear student, this is Ranjit Parashar here and today we will discuss about the second chapter of your SST book. The chapter name is The Imaginary Lines, Latitude and Longitude. Dear students, we are much aware about the globe. You know that globe is the small model. Globe is a small model of the earth. हमारी धरती का एक छोटा सा मॉडल जो है वो ग्लोब है एंड द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज। और जो हमारी अर्थ का जो शेप है, आकार है, वो एक ऑरेंज की तरह है एंड इट इज स्फेरिकल है विच इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम। सबसे ऊपरी सतह पर और सबसे निचली सतह पर ये फ्लैट है, स्लाइटली फ्लैट, एज लाइक वाटरमेलन यू कैन से दैट। When we look at the globe, we see a number of countries and important places marked on it. Dear students, this is time to study about these lines, about these points. हम इस चैप्टर में उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. But before going further discussion, we will discuss about the use of an atlas. You know that book of maps called atlas. अगर आपसे कोई पूछते हैं what do you mean by atlas, तो आप क्या कहेंगे? A book of maps called atlas. And when you look the first page of the atlas, you will see the index. An index shows you the names of the places marked on the different maps of the atlas. जो maps यूज़ किए गए हैं तो उन मैप्स पर अलग अलग जो कंटेंट्स दिखाए गए हैं उन चीज़ों के नाम मार्क किए जाते हैं। और इंडेक्स का मेन मोटो ये होता है कि वो आपको बताए कि चैप्टर में या किस पेज पर किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। आइए स्टूडेंट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब और हम डिस्कस करते हैं कि हम जब ग्लोब लेते हैं तो आप देखते हैं उनमें बहुत सारी लाइंस ड्रॉ होती हैं। Whenever you look at the globe, you will see number of lines on it. आप उसके ऊपर बहुत सारी लाइंस देखते हैं and these lines are imaginary lines and these imaginary lines actually exist on the surface of the globe but not on the earth. ये जो lines जो दिखाई देते हैं आपको ग्लोब्स के ऊपर, ये एक्चुअली ग्लोब पर ही होते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, इमेजिनरी लाइंस दैट वी ड्रॉ फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे ड्रॉ करते हैं। तो अब हम इन लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि लाइंस कितने तरह के होते हैं और कौन कौन सी लाइंस होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखेंगे तो आप दो तरह के लाइंस देखते हैं ग्लोब के ऊपर। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड अदर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। सो वी ऑलरेडी नो द एक्सिस ऑफ द अर्थ or the other planets. What do you mean by axis? Axis is an imaginary line on which earth rotates on its axis. Earth जो है वो rotate करते हैं. This is the imaginary line passing through the center of the earth. And the earth constantly rotates on this axis. The two ends of the axis of the earth called poles. That is the upper pole, that is the north pole, and the lower one is the south pole. So dear students, आपने देखा the upper pole of upper part of the globe can be termed as north pole and the bottom part of the globe can be termed as south pole. Okay dear students, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो ग्लोब्स हैं उनमें अलग अलग लाइंस ड्रॉ की गई हैं। आइए हम डिस्कस करेंगे इन लाइंस के बारे में। तो
तो आपने देखा इस ग्लोब को, एक लाइन जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है या पैरेलल टू द इक्वेटर जा रही है। आप देखें ग्लोब के बीच से एक लाइन जा रही है, ये देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा इस लाइन को अगर आप देखेंगे बेटा तो ये देखिए, ये देखिए ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, दिस इज इक्वेटर, ये है इक्वेटर। एक्चुअली इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल हाफ्स। द अपर हाफ is called north pole and the bottom part is called south pole. Okay dear students, let's come to the topic. Before going further discussion, we will discuss about the two types of lines and why do we need to draw these lines. There are two types of lines, that is the imaginary lines called latitudes and longitudes. Dear students, we draw these lines in order to locate any particular place on the globe. हम इस लाइंस को ड्रॉ करते हैं ग्लोब के ऊपर ताकि हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को हम दिखा पाए। आइए स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लैटिट्यूड्स की। You know that the equator, that is the imaginary line that divides globe into two equal halves, and this is the longest and actually this is a very important part and the longest parallel. You can say the great circle. You can say the equator as a great circle because it divides the globe into two equal halves. As you move either side of the globe, either north or south, the circle length will get decreases. जो लेंथ है सर्कल का वो डिक्रीज होता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे हम पैरेलल्स भी बोल सकते हैं या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कह सकते हैं। Since the earth is round, these lines are circular and run in an east-west direction. Look at the globe, you will see that the line moving from east-west direction. And these lines are measured from the equator. इस लाइन को हम कहाँ से मेजर कर सकते हैं, इक्वेटर से। And equator can be termed as 0. And as you go or move above, you will measure 90 degree north and below or bottom 90 degree south. Okay dear students, let's move further. You will see that beside equator there are 4 other important latitudes, such as Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, यानी 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड इन साउथ एट द सेम डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज फाउंड. It means Tropic of Capricorn is found at 23 whole 1/2 degree south. यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 23 होल 1/2 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. इसी तरह Arctic Circle lie at 66 whole 1/2 degree north and Antarctic Circle lies at 66 whole 1/2 degree south. तो आपने ये देखा कि ये जो 4 अलग अलग पार्ट्स हैं लैटिट्यूड्स के, ये बहुत ही वैल्यूएबल हैं. आगे जब हम हीट जोन डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा. तो अब हमने देखा कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो होते हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं. दूसरी चीज कि ये जो मिडिल पार्ट ऑफ द सर्कल है
मीन्स जो लॉन्गेस्ट पैरेलल है लैटिट्यूड का वो है आपका इक्वेटर। कितने डिग्री पर है ये? 0 डिग्री पर है। और जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे की ओर जाएंगे तो इनके लेंथ जो है वो छोटे होते चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि इसकी जरूरत हमें क्यों होती है? तो प्यारे बच्चों, द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड कैन देयरफॉर नेवर मीट। अगर हम इसकी देखें तो एक तो पहली बात तो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो जरूरत होती है ताकि हम इसे किसी पर्टिकुलर प्लेस को इस पॉइंट के जरिए हम डिनोट कर सके। इट मीन्स parallels of latitudes and longitudes help us to locate any particular region on the globe. इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। The latitude are parallel to each other and therefore never meet. Parallel lines never meet, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। These lines are vary in length, मीन्स इनके लेंथ अलग होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और लॉन्गेस्ट लाइन जो होती है इनकी लेंथ होती है वो इक्वेटर की होती हैं और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये बेटा ये आपके पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हमने डिस्कस किया, ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है। अब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि 10 से 11 मिनट का वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसीलिए अब लॉन्गिट्यूड हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। हैव ए गुड डे बेटा।